Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to continue with our topic Kingdom Fungi. As we know, this kingdom is very diverse kingdom. It shows great diversity in its morphology, that is the external structure. Habitat means the place where it is present. It can be heterotrophic organism, those organisms which depend on the another for food. They can be saprophytes, those who are going to convert the food into the soluble form outside the body. They can be parasites, means they live on the body of the host and in return harm them. They can live as symbionts, means interaction with the two species and both are beneficial to each other. Fungi can be used as an antibiotic. As we know, penicillin notatum is the first antibiotic. By this we can say fungi shows great diversity in morphology, their habitat, their nature, their nutrition. All of them are going to show the great diversity. Okay, as we know, the filamentous structure which is present in the fungi is known as the hyphae, and the network of hyphae is called mycelium. On the basis of mycelium, fungi can be divided into the uninucleated mycelium, means the mycelium which is having only one nucleus, or multinucleated mycelium, means the mycelium which is having the many nucleus. Okay, fungi can be present in the symbiotic association as we discussed earlier also. For example, lichens, it is the symbiotic association of algae and fungi, and mycorrhiza, it is the symbiotic association of leguminous plants and the fungi. When the fungi undergo the process of reproduction, it can show the three mode of the reproduction: asexual reproduction by fission, by budding; vegetative propagation or vegetative reproduction by the process of fragmentation; and the sexual reproduction, which involves further three steps. First is the plasmogamy, that is the fusion of the protoplasm. Second is the karyogamy, that is the fusion of the nucleus. And third is the formation of the spores by the process of meiosis. ओके, तो अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी बात करें तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है, यानी कि वहां पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई गेमीट फॉर्मेशन होती ही नहीं है. सेकेंड, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी शो कर रहा है, मीन्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. और थर्ड, वो हायर इवोल्यूशनरी फीचर भी शो कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है by forming the haploid gametes like the higher category organisms. Okay, some important members of fungi are: first important member is Phycomycetes. Phycomycetes is basically present in the aquatic habitat or on the decaying wood or the moist or damp wood. It is obligate parasite. Obligate का मतलब होता है स्ट्रिक्टली पैरासाइट है, ये दूसरे की बॉडी पे रहेगा और इन रिटर्न उसको हार्म करेगा. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये करता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द स्पोर्स, एंड दीज स्पोर्स आर मोटाइल एंड द नेम ऑफ द स्पोर्स आर जू स्पोर्स. और बाय द ए प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं. यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है फाइकोमैसेटीज, तो वो स्पोर फॉर्मेशन करेगा. दो तरीके के स्पोर्स बनाता है. वन है ए प्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल है, मतलब लोकोमोशन नहीं करेंगे, और दूसरा है जू स्पोर जो मोटाइल है, यानी कि मूवमेंट शो करेगा. ठीक है, देन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, तो वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होंगी. जो गैमीट्स फ्यूजन होंगे वो आइसोगैमी गैमस हो सकते हैं. आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस से वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट. आइसोगैमस होंगे, मॉर्फोलॉजिकली वो बिल्कुल सिमिलर होंगे. दे कैन बी डिसिमिलर and that condition is called anisogamous. Anisogamous मतलब different male and female gamete morphologically. Usually female gamete longer होता है और male gamete shorter होगा. ठीक है, तो फाइकोमाइसेटीज का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि ये मॉइस्ट स्पेसेस पे रहेगा. सेकंड, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है. थर्ड ये है कि ये स्पोर्स बनाएगा, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स भी बनाता है और ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स भी बनाता है. ठीक है, एस्कोमाइसेटीज कम्स फ्रॉम द वर्ड एस्काई. एस्काई मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर जो यूजुअली मल्टीसेलुलर है. एस्कोमाइसेटीज में जो मेंबर्स हैं वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कैप्रोफिलस भी हो सकते हैं. कैप्रोफिलस आर दोज विच ग्रोज ऑन द डंग. माइसीलियम जो है ब्रांच्ड है, सेप्टेट है. माइसीलियम अभी आपको बताया, दैट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफे. ओके, दे आर ऑल्सो हैविंग एसेक्सुअल स्पोर्स जिनको हम कोनेडिया
बोलते हैं, और कोनिडिया जो एक स्पेशल माइसीलियम पे ग्रो होता है जिसका नाम है कोनिडियोफोर्स. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. दे are going to produce the asexual spores, and the asexual spores are called conidia, which are grown. पूरा एस्कोमाइसिटीज गलत. एस्कोमाइसिटीज. Ascomycetes comes from the word asci, which means the sac-like fungi. Penicillin जो है वो Ascomycetes कैटेगरी में आता है. They can be saprophytic, they can be decomposer, they can be caprophilous, means they grow on the dung. बेसिकली जो इनका माइसीलियम होगा वो ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा. दे आर गोइंग टू फॉर्म द एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर कोल्ड कोनिडिया. कोनिडिया एक स्पेशल माइसीलियम पे ग्रो होता है जिनका नाम है कोनिडियोफोर्स. ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं और इनका सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर्स. तो यानी कि यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं जिनका नाम कोनिडिया है जो एक स्पेशल माइसीलियम पे बनते हैं कोनिडियोफोर्स पे, और सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिसका नाम है एस्कोस्पोर्स. Okay, so the common example of this category are Aspergillus, clavicaps, Neurospora. न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ही ज़्यादा. और तो यानी कि जो एस्कोमैसिटीज है उसके अंदर आपको दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एसेक्सुअल स्पोर्स which are called conidia present on the conidiophores, and sexual spores which are called as the ascospores. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनका जो मेंबर है न्यूरोस्पोरा, ये एग्जाम्पल है जो बहुत ही जेनेटिक पर्पस के लिए यूज होता है. थर्ड इंपॉर्टेंट मेंबर्स आर बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिकली पफ बॉल्स, मशरूम्स, ये सब आएंगे जो सॉयल वगैरह पे आराम से ग्रो हो जाते हैं. पैरासिटिक भी होते हैं इनमें बहुत से. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा शो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन. और बेसिडियोमाइसिटीज में एक बहुत ही स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं जिनका नाम है बेसिडियोकार्प्स. ओके, तो बेसिकली इसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो मशरूम है, स्मट है, ठीक है, प्यूसिनिया है. देन द नेक्स्ट मेंबर इज ड्यूट्रोमाइसिटीज. ड्यूट्रोमाइसिटीज इज ऑल्सो नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई, जिसमें आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो देखने को मिलेगा. यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम दिखाता है. यूजुअली ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करेगा. ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कोनिडिया जिन्हें हम बोलेंगे. ओके, और इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो ट्राइकोडर्मा है, एल्शेनेरिया है, कॉलिट्रोट्राइकम है. ओके, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखनी है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई, और इसके पास भी जो है स्पोर्स हैं विच आर नोन एज द कोनिडिया. अब जो किंगडम प्लांटे और फंजाई है इनके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर ही है. वी आर गोइंग टू कवर दैट. I hope this chapter is clear to you. If you are having any doubt, you can ask me.